back to the physics class. So we were doing the thermal properties of matter. In this chapter we have reached to one of the important topic, that is transfer of heat. How heat flows from one point to another, what are the methods through which heat can flow from one object to another. Okay, so topic is transfer of heat. There are three ways in which heat may be transferred from one place to another. These are conduction, convection and radiations. Three methods are there. First method through which heat can be flows from one point to another, that is convection. First is conduction and second is convection and third is radiation. Three methods are there by which heat can be flows from one point to another. I think board is not visible over here, so I am writing here also now. Transfer of heat. Three methods are there. First is conduction. And what is second? That is convection. And what is third? That is radiation. Conduction, convection and radiation, three methods are there. Let us discuss them one by one. What is conduction? It is the process by which heat is transferred from one point to another through a substance in the direction of fall of temperature without the actual movement of particles. Let us discuss the conduction first. So what is this? Process of transfer of heat. Process of transfer of heat through substance, okay, in the direction of fall of temperature. In the direction of fall of temperature, जिधर temperature decrease हो रहा है, मतलब decreasing direction में, okay, without moving actual particles. Without moving actual particles. Actual particle के without motion, मतलब particle जो heating वाले वो खुद नहीं move करेंगे, ये transfer करेंगे from one particle to another. That is called conduction. That is called conduction. Okay. What is generally हम बता लेते हैं कि एक लाइन है, लाइन में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं या 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं. फर्स्ट स्टूडेंट के पास एक बॉल है, वो बॉल फिफ्थ स्टूडेंट तक पहुंचानी है. इट मीन्स बॉल हैज टू बी रीच्ड टू द फिफ्थ स्टूडेंट. व्हाट आर द मेथड्स? फर्स्ट मेथड इज पासिंग द बॉल टू अनदर पार्टिकल. First passing the ball to second, third to fourth and fourth to fifth, and the ball has been reached to the fifth particle, fifth person, fifth student. So now replacing the ball with the heat. Suppose this is the heat. So heat, we are hitting the first particle, heat is given to the first particle. Heat moves to second to third to fourth and fourth to fifth. The heat has been reached from first to the last particle without actual movement of particle. Particle को खुद move नहीं किया, सिर्फ heat transfer हुई है. So this is called conduction method. What is it called? That is conduction method. The solid differs considerably from each other on their ability to conduct heat. Some of them being good conductor. सारे solid एक जैसा conduct नहीं करते. Some of the solid conduct heat more than the another. जो ज़्यादा कंडक्ट करते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो कम कंडक्ट करेंगे दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके. एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टिविटी इन एवरीडे लाइफ. एवरीडे लाइफ में
क्या हमारी कनेक्टिविटी के देखते हैं हम एप्लीकेशंस कहाँ यूज़ होता है। कुकिंग यूटेंसिल्स आर प्रोवाइडेड विद वुडन हैंडल्स। कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं प्लास्टिक हैंडल्स उनके ऊपर बने हुए होते हैं। क्यों? मीन्स कुकिंग यूटेंसिल इज टेकिंग हीट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द यूटेंसिल, हीट ट्रांसफर टू द अपर पार्ट, फॉलो टेम्परेचर की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेगी, हैंडल भी गर्म हो जाएगा। हैंडल के ऊपर वो प्लास्टिक हैंडल मतलब जो पकड़ने वाली साइड होती है उसके ऊपर प्लास्टिक हैंडल ना लगाओ तो यू कैन नॉट पिक अप दैट यूटेंसिल फ्रॉम द फ्लेम, ओके, बिकॉज वो भी गर्म हो जाएगा, हीट कंडक्ट करती है। दिस इज द मेथड ऑफ कंडक्शन, ओके। आइस इज पैक्ड इन गनी बैग्स और सॉडस्ट। आइस जो होती है, बर्फ जो होती है, वो जैसे आपने देखा होगा बोरियों में बंद करके उसको रखा जाता है। गनी बैग्स और सॉडस्ट इज ऑल्सो वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, द एयर गैस ट्रैप इन साइड। क्योंकि जो कट्टे नहीं बने होते जिसमें गेहूं वगैरह हम पैक करते हैं, उसी में बर्फ डाल के रखी गई होती है, आइस की जो सिल्ली होती है बर्फ की। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देयर आर सम पोर्स ऑन दैट गनी बैग्स, उन पोर्स में एयर रहती है और एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो हीट को वो फ्लो नहीं करने देती। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स in which heat flows in the by the method of conduction, okay. Now we are explaining the another method for this, that is convection. Second method is convection, heat radiation, heat transfer का second method, that is convection, process by which heat is transferred through a substance from one point to another due to bodily motion of the heated particles of substance. What is this? That is process of transfer of heat through substance with bodily motion of heated particles, bodily motions of heated particles. What is here the meaning of bodily particles? Body particles मतलब बॉडी के पार्टिकल्स जो बॉडी के अंदर ही मूव करेंगे सिर्फ, ओके। एंड मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल्स, जो जिनको हीट मिलेगी वही पार्टिकल्स मूव करेंगे। सो इसमें पार्टिकल्स मूव करेंगे एक्चुअली, सो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन इन लिक्विड्स। In liquids, when we put the liquid in a container and heated that container on the flame, you can look at the bottom particles of the liquid heated first and they move to the upward direction. When the liquid boils, मतलब liquid जब boil करता है, उबलता है liquid, तो आपने देखा होगा bottom के particles liquid के कहाँ आते हैं? ऊपर की तरफ आते हैं सेंटर से, और ठंडे पार्टिकल कहाँ जाते हैं? नीचे। सो दैट इज कन्वेक्शन, हीटेड पार्टिकल खुद मूव कर रहे हैं ऊपर तक, उसको गर्म करके लेके आ रहे हैं, दैट इज कन्वेक्शन। तो गैसेज में, लिक्विड में जो मोस्टली हीट ट्रांसफर होती है, दैट इज द मेथड ऑफ, बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। एंड थर्ड मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस by which heat can be transferred from one place to another, that is radiation. Method is radiation, okay. अब थर्ड मेथड क्या है जिसके जरिए आप बॉल, अब इसमें क्या था सेकंड में, बॉल खुद वो मतलब पार्टिकल्स ये खुद मूव करके जाए फेस्ट के पास उसको देने के लिए, विदाउट इंटरवीनिंग पार्टिकल डिस्टर्ब भी ना हो, सीधा उसके पास खुद चल के जाए ये, ओके, मूव करके जाए और फर्स्ट उसके पास पहुंच जाए और उसको बॉल दे दे और वापस आ जाए, मतलब हीट पार्टिकल खुद मूव करके गया। बट इन द मेथड ऑफ रेडिएशन, प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, बिना किसी मीडियम को डिस्टर्ब किए हीट सीधा ही पहुंच जाए और मूवमेंट भी ना हो। ट्रांसफर ऑफ हीट without disturbing the intervening medium. Intervening medium means जो दोनों के बीच में मीडियम है उसको बिना डिस्टर्ब किए अगर हीट ट्रांसफर हो जाए, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। व्हाट इज इट? दैट मेथड इज कॉल्ड रेडिएशन, ओके। So now what is this? That first, second, third, fourth, fifth पार्टिकल है, ये बॉल सीधी फेंक दे। फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड ऐसे जा रहा था।
सेकंड में क्या था, खुद फर्स्ट मूव करके फिफ्थ के पास जा रहा है। थर्ड में क्या है कि हीट सीधी ट्रांसफर हो रही है, इट मीन्स बॉल को उसने सीधा ही फेंक दिया फिफ्थ के पास, ना खुद गया, ना बीच का मीडियम की जरूरत हुई, ना पार्टिकल का मूवमेंट हुआ। सो दिस इज द मेथड ऑफ रेडिएशन, दिस इज द मेथड ऑफ रेडिएशन। अगर मान लीजिए सर्दियाँ आ चुकी हैं, अब आग के पास आप बैठे हो, हाथ सेक रहे हो, यू आर गेटिंग द हीट फ्रॉम द फ्लेम, तो क्या हुआ कि आप नहीं मूव कर रहे, वो आग भी आपके पास चल के नहीं आ रही, सीधी आपको हीट मिल रही है, उसकी वजह से आपके हाथ गर्म हो रहे हैं। दैट इज द मेथड ऑफ रेडिएशन। व्हाट इज दिस? दैट इज मेथड ऑफ रेडिएशन। द हीट फ्रॉम द सन, सन की जो हीट हमारी अर्थ तक पहुंचती है, दैट इज द मेथड ऑफ रेडिएशन। वो रेडिएशन सन खुद चल के नहीं जा रहा हमारे पास आ रहा, अर्थ खुद चल के सन के पास नहीं जा रही, इंटरव्यूनिंग मीडियम डिस्टर्ब नहीं हो रहा, सीधी हीट सन से अर्थ पर स्ट्राइक कर रही है, तो इट मीन्स दिस इज द मेथड ऑफ रेडिएशन। We are discussing that what is thermal radiations. What is thermal radiations? Energy emitted by a body in the form of radiations अकॉर्डिंग टू इट्स टेम्परेचर। कोई भी बॉडी अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, दे आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस। व्हाट इज इट? दैट दे आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन, एंड थर्मल रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो थर्मल रेडिएशन ज़्यादा छोड़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो थर्मल रेडिएशन कम छोड़ेगा। ओके, थर्मल रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। थर्मल रेडिएशन कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में से भी क्या कर सकती हैं, रेडिएशंस ट्रैवल कर सकती हैं, स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रैवल करती हैं, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी पढ़ा है। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक थर्मल कंडक्टिविटी। Topic is that is thermal conductivity. Conductivity means, thermal conductivity means capacity to pass the heat. Heat pass करने की कितनी capacity है। The amount of heat flowing through a substance by conduction depends upon a number of factors. मतलब conduction method से जो heat transfer हो रही है, that is मान लो Q is the heat transfer. What is Q? Q is heat transferred. Q is heat transferred. Okay, कितनी heat ट्रांसफर हो रही है, दैट इज द Q. दैट हीट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फेस, जहां से हीट निकल रही है, हीट एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सरफेस। अगर सरफेस बहुत बड़ा है तो उससे हीट ज्यादा निकलेगी, या सरफेस कम है तो उसकी हीट कम ही निकलेगी। तो हीट एमिटेड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेस। मान लीजिए दो फेसेस है हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट फेज, दिस इज सेकंड फेज, दिस इज द टेम्परेचर T1, दिस इज टेम्परेचर T2। T1 इज ग्रेटर देन क्या है, T2 है, तो T1 हीट रिलीज करेगा, T2 हीट गेन करेगा। सो इनके बीच का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा डिफरेंस, उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। सो हीट ट्रांसफर्ड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड सरफेस। मान लीजिए आपने चाय ठंडी होने की रख ली, सर्दियों का दिन है आजकल चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि चाय का टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर आज का 9 डिग्री सेल्सियस है, 9 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स टेम्परेचर इज 41 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में अगर आप बात करो, चाय 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है चाय का अभी भी गर्मियों में, और बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इट मीन्स 50 - 30 20 का डिफरेंस है। चाय गर्मियों में जल्दी ठंडी नहीं होती, बिकॉज इन विंटर्स देर इज अ मच मोर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। हॉट और कोल्ड फेस में अगर टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी दैट विल बी मोर, वो उतना ही ज़्यादा होगा। एंड ऑल्सो हीट फ्लोज इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी टाइम। टाइम जितना ज़्यादा, जितने टाइम के लिए ज़्यादा हीट फ्लो करोगे, उतना जितने टाइम के लिए आप कप ज़्यादा रखोगे, उतनी वो चाय जल्दी ठंडी होगी। इट मीन्स हीट फ्लोज इज प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑल्सो, जितना टाइम ज़्यादा उतना हीट ज़्यादा फ्लो करेगी। नेक्स्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। डी इज द डिफरेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस। वन इज हीट लॉस्टिंग एंड अनदर इज गेनिंग। डिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना सरफेस दूर होगा,
जितना दूर होगा हीट उतनी कम जाएगी उसके पास. सो हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस. अगर हम इन चारों को इकट्ठा मिला दें तो व्हाट इट विल बी दैट Q इज इक्वेशनल टू व्हाट A T1 minus T2 into T by में D. A T1 minus T2 into T by में D. इन तीन के डायरेक्ट क्वेश्चन और एक के इनवर्सली. नाउ अगर प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करके इक्वल में चेंज करें सो देयर विल बी अ कांस्टेंट दैट इज K. कांस्टेंट इज K and what is K? K is coefficient of thermal conductivity. K is coefficient of thermal conductivity. K is coefficient of thermal conductivity. It depends on the nature of material of the slab जिससे वो मटेरियल बना हुआ है, जो हीट ट्रांसफर कर रहा है उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा. ओके. सो if suppose dq heat is transferred in dt time, dq heat is transferred in dt time, two phases are there, so we can write it as if dq heat is transferred, ये टाइम हम नीचे लेके आए इसमें, and time is dt, so what will be over here Ka and difference between the two temperature of the bodies that is dt and distance is dx, means two faces हमारे पास, रूम की दो दीवारें हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस dx है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के बीच में दैट इज dt, कैपिटल dt, एंड व्हाट इज दैट स्मॉल dt, दैट इज द टाइम फॉर विच द हीट इज ट्रांसफर्ड एंड dq इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड. ओके. सो दिस इज dq by dt इक्वल्स Ka dt by में dx.